Hello, good evening everyone. Myself, Dr. Dipali Kate from Pune. I am your host for today. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF. Today is our 26th lecture of this wonderful webinar series. I am happy to welcome and introduce today's speaker and my close friend who always encourages me and always decides me. She is none other than Dr. Mansi Patil from Kolhapur. She has done her BHMS from Srimati Venutai Yashwantrao Savan, Homeopathic Medical College from Kolhapur. And currently she is lecturer in the same college. She is practicing since 20 years. She is into mind method since 7 to 8 years. She is most responsible admin of PHF. Dr. Mansi is famous for her daily rubric study. She has very good knowledge of repertory and rubric understanding. So, without wasting much time, let's hear from Dr. Mansi. Welcome, Mansi. Welcome, Mansi. वेलकम मानसी मैडम ऑल द बेस्ट All the best. डॉक्टर मानसी पाटिल को हम लोग बच्चन बुलाते हैं. She is the बच्चन of our Professor Homeopathic Forum. चलो मानसी बेटा, come on, kill it now. Good evening, everyone. Thank you, Deepa, for a warm welcome. And first of all, thank you and gratitude to my Guruji, Dr. Liaquat Namole sir, जिन्होंने हमें मार मार के तैयार किया है, क्योंकि गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे गुरु मिलना मतलब एक ब्लेसिंग होती है. तो आई रियली फील ब्लेस्ड कि सर हमारे साथ है. So thank you, sir. And thank you, my team. So let us start with today's topic. It is skin disorders and its homeopathic management. So let us first understand what is skin. So skin is an amazing feat of nature's technology, being waterproof yet able to release the water, that is sweat, washable, temperature controlling, self-mending, and sensitive to touch. It is vital to your well-being as it forms a protective shield over our whole body. It reflects your every emotion and indicative of your state of health, your diet, your lifestyle, your alcohol consumption, your addictions, etc. Through the skin, you face the world and the world knows you. Every feeling has an effect. The feeling which passes through the neurotransmitters. So we blush with embarrassment. We get red anger. We get red with anger. We get white or sweat due to fear. Then we get goosebumps because of the excitement or the horror part. Some people have thick skin, we say. So thick skin means they are less sensitive to the feelings or criticism. And on the other hand, there are people who have thin skin. That means they indicate they are highly sensitive. So skin, it is your own skin, and you can never change or replace your skin, no matter how often you want to jump out of it. Okay, skin issues are also about touch and feel issues. So touching is the basic form of communication, and it is essential for life, like we see in newborn babies. So without that tender touch, they will be deprived of the emotional and the physical development. So without human contact, adults also feel lonely, and they may suffer from mental illnesses. So through the skin, we communicate with our outer world.
You give and receive reassurance, love, caring, and a knowledge that you are safe. But however, touch associated with trauma or abuse can create long-term conflict, making it difficult to be touched again. Past fear can make you withdraw and refuse tactile intimacy. So psycho-emotionally, your skin is your boundary, the meeting place between you and the outer world. So when the skin issues are there, when someone or something has crossed that boundary and gets under your skin, or where the communication is making your skin crawl. So this is the little understanding about the skin, how the skin issues are there. So when we study the psychodynamics, I have referred one book, that is GNM. Dr. Hammer has written that book, and according to GNM theory, Dr. Hammer says that it is a attack conflict. That means attack means it may be a physical attack or a verbal attack. The physical attack is what? It is by a person or a animal, a hit, like in sports. The sportsman get hit by another person, or it can maybe a medical procedure like surgery, injections, vaccinations, biopsy, or piercing pain that could also be registered as an attack. Or and in verbal attack, for example, being yelled at, scolded, assaulted, or threatened with sharp and aggressive words, typically hit the face, the forehead. That is, it is an insult to the intelligence of the person. Or generally we say backstab, like people backstab us. So that is also an attack. Again, verbal attack is hearing offensive words, criticism in hostile manner, discrimination or defamation, or an insult against one's integrity could have an impact on the whole body. So, and one more psychoanalyst, Dr. Lise Bourbeau, she has also written about the skin disorders, that all the skin disorders are the manifestations of shame and self-depreciation. That is what she says. So this is about the some little psychodynamics of skin disorders, we can say. And coming to our homeopathic fraternity, so and Dr. Hahnemann has also said many things about skin disorder, their the pathology, the development of skin disorders, and the management part. He has written almost 18 aphorisms about these skin disorders, and he said that these external affections or the local maladies, he says, for that skin disorders, that they happen only because there is always something internal disorder or internal derangement. So without internal derangement, there cannot be an external manifestation or external affections. And that is what Dr. Hahnemann says. And in the treatment part also, he says that we should not treat the external affections as the only the skin infections, as a skin infection. We have to consider the whole person. As we know, we treat man in disease and not the disease in the man. So that is what he says in the management part of the skin disorders. Okay, so this was the theory part. So let us concentrate on the practical part. So we will be listening through the cases. So I will share 2 short cases. Is it okay? Am I audible or anything is boring? No, nothing is boring.
No, no, no. Only one sentence I want to add to what you have narrated. मैं सब पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि there is nothing like skin disease. Disease comes out through skin. Okay, this is my sense. This is what I have understood. Skin. Go ahead. Very nice. Okay, so this is the first case, a lady having ringworms. So उसके पूरे बॉडी पे रिंगवर्म थे, पूरा मतलब फेस भी भर चुका था। तो वो आई तब वो पूरा स्कार्फ पूरा कवर करके आई थी, और एक्चुअली वो अपने खुद के लिए आई नहीं, हस्बैंड के साथ आती थी, तो बाहर ही वो रुकती थी। तो कब 1-2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने ही पूछा उनको कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, कि आपको कुछ हुआ है क्या? तो बोले कि हाँ, थोड़ा सा इन्फेक्शन है। लेकिन जब हमने उनकी केस ली तो देखा तो वो पूरा मतलब बहुत डेंजरस था वो दिखने में भी। तो पूरा उसका बॉडी कवर्ड था रिंगवर्म से। और फिर हमने पूछा उनसे, बातचीत की कि क्या है, कब से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ वगैरह। तो उन्होंने बताया कि ये 7-8 महीने से चल रहा है। पहले उनके नेफ्यू को हुआ, फिर हस्बैंड को हुआ, फिर इनको हुआ। तो अभी ये पास ऑन हुआ है उनकी एक बेटी को। तो फिर उन्होंने उनकी और 2 बेटियां हैं, तो बेटियों को उन्होंने अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ दिया है, क्योंकि उनको भी ना हो जाए इसके लिए। तो और दूसरी बात, फिर उनको पूछा कि क्या है, मतलब आपको क्या फीलिंग है इसके लिए, क्या टेंशन क्या आती है, और कैसे मतलब क्या सोचते हो इसके लिए। तो उन्होंने बताया कि देखिए, मैं मुंबई में रहती हूँ, और ऐसा है कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। कुक करना और सर्व करना लोगों को, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा घर पूरा भरा हुआ रहता है लोगों से। मेरी फैमिली भी मेरे नजदीक में रहती है, फैमिली है, सिस्टर है, और मदर वगैरह वो सब भी मेरे नजदीक में ही रहते हैं। तो मेरा घर हमेशा भरा रहता है। फ्रेंड्स भी मेरे बहुत सारे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि सबके साथ रहना, उनको कुक करना, सर्व करना वगैरह। और मैं टेलरिंग भी करती हूँ, तो उसकी वजह से भी लोग मेरे घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है। तो जब से ये हुआ है चीज, तो सब लोग मुझसे दूर जाने लगे हैं, और वो मुझे समझ में आता है। तो बाकी के बाहर के जो लोग हैं वो जाते हैं, उसका मुझे इतना नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे अपने लोग, जो मेरी फैमिली है, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी मुझसे दूर भाग रहे हैं कि ये उनको भी ना हो जाए। ये डर उनको शायद लगता हो। तो ये बात बताते वक्त उनकी आंखों में थोड़ा सा पानी आया, तो उन्होंने फट से वो फौरन वाइप कर दिया, और बोले कि नहीं अच्छा लगता, मतलब मैं सबके साथ इतना अच्छे से रहती हूँ, और फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे क्यों लोग कर रहे हैं। मतलब वो पूरा जैसे बोलते हैं वो डिस्पाइज्ड वाला फीलिंग, वो उन्होंने खुद ही बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों ने मुझे किया है, मैं जैसे अछूत हो गई हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, और क्या है। और ये हुआ कि एक इंसिडेंस उन्होंने बताया था कि पापा के साथ भी ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि उन्होंने भी पहले मतलब बहुत साल पहले उन्होंने भी मेरे साथ धोखा किया, डिस्ट्रस्ट दिखाया था। तो वो भी मेरे मन में बात है, लेकिन मैंने उनको कभी उनके साथ आर्ग्यू नहीं किया किसी चीज के लिए। तो स्कूल में भी मैं बहुत छोटी थी तब से, मतलब होशियार थी, और सब टीचर्स की मैं फेवरेट थी। और 10th तक तो किया मैंने। 10th का एग्जाम भी जैसे तैसे दिया, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, और ये 6th चाइल्ड है उनके पेरेंट्स की। तो 10th उसके टीचर्स के कहने पर उन्होंने एग्जाम दिलवाई, और वो 10th का एग्जाम दिया, लेकिन उसके आगे वो पढ़ नहीं पाई, और उसके बाद फौरन उसने काम शुरू कर दिया था, और फाइनेंशियल हेल्प के लिए, और अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर रही थी। और उसके बाद उनकी एक कम उम्र में शादी भी हो गई, उसके बाद बच्चे भी हो गए। लेकिन वो बोली कि किसी के लिए मेरे मन में ये नहीं है, मतलब कोई ग्रजेस नहीं है किसी के लिए, कुछ ऐसी भावना नहीं है कि कोई ये है गलत है या ऐसा है।
सब अच्छे हैं, मेरी फैमिली भी अच्छी है, और यहाँ पे इन लॉज के यहाँ पर भी सब अच्छा है, मतलब सब मेरे लोग घर के इन लॉज भी सब अच्छे हैं। तो ये उसकी हिस्ट्री थी। सो आप लोग क्या करेंगे अभी, एनालाइज करेंगे या मैं दूसरी केस भी एक साथ ही बोल दूं? हेलो, इसको एनालाइज करके फिर ठीक मैम मैम एक ठीक एक है, करके। जिनको बोलना है वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो, कुछ भी आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग है, कोई रुब्रिक है या फिर रेमेडी का फील है, कुछ भी आपको जो भी लगा हो। ह्यूरा जैसे लग रहा है मैम। जी, ह्यूरा ह्यूरा, कास्टेबल ओके, आउटकास्टिंग मैम, आउटकास्टिंग फीलिंग। आउटकास्टिंग, ओके। और मैम और सेपिया, कुछ? सेपिया, क्यों? एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज डांसिंग, ओके, डांसिंग रिदम विद मार्क सेंस ऑफ, और डेल्यूजन नेग्लेक्टेड ही और सी इज नेग्लेक्टेड। ओके। किसने निग्लेक्ट किया उनको, क्यों लगा है निग्लेक्टेड वाला? मैम क्योंकि जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं वो उनसे दूर जा रहे हैं ना, तो उसको लगता है कि मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ओके। और किसी को बोलना है? हार्मोनी डिजायर, कैसे हार्मोनी, कैसे? हार्मोनी क्यों लग रहा है आपको? उसके घर में सब भरा हुआ रहता है ना, उसका घर। उसको उसको वो सब लोग चाहिए, वो जो आजू बाजू जो लोग है, तो वो जो हार्मनी है उसके साथ में चाहिए। और लेकिन वो एक एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरसमेंट भी लग रहा है कि वो थोड़ा उसको लज्जा भी लगती है कि ना ये इससे ना ये लोग दूर ना चले जाए, तो वो फीलिंग है, वो फीलिंग है उसको। ओके। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाँ, मैम मुझे लग रहा है ये कैलकेरिया कार्व है, मतलब मेडिसिन में नहीं बोलना चाह रही हूँ, बट मुझे क्या लग रहा है फादर से इसके कुछ इश्यूज रहे हैं बचपन के, और ये सपोर्ट चला जाएगा। फॉर सेकंड फीलिंग आ रही है, मेरे फैमिली के सपोर्ट चले जाएंगे, ये डिजीज की वजह से लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना सपोर्ट इनसिक्योरिटी फील कर रही है, तो ये मुझे कैलकेरिया की तरफ लेके जा रहा है, और फादर से इशू था इसलिए कार्व लग रहा है। लेकिन फादर के लिए कुछ भी नहीं है अभी, उसके मन में ये नहीं है कि फादर ने ऐसा किया था, तो वो इंसिडेंस याद रह गया है, लेकिन फादर के लिए कुछ मतलब क्या बोलते, बुरी वाली फीलिंग नहीं है। ओके, बट बिटरनेस नहीं है, आ किसी के रही है लिए मुझे। बिटरनेस नहीं है उनके मन ओके, में। बट इनसिक्योरिटी मुझे लग रहा है वो इनसिक्योर फील कर रही है इस डिजीज की वजह से। ओके, थैंक मैम सीपिया का एक रूब्रिक और मिला है, अच्छा। केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर, जैसे वो सब लोगों के लिए काम कर रही है, उनको खाना बना के खिलाती है, और ये सब डोमेस्टिक में ही आएगा। हाँ, लेकिन वो सबके साथ रहना चाहती है ना, मतलब फैमिली तो है ही, लेकिन फ्रेंड्स भी है, और जो भी अगर टेलरिंग के लिए भी उसने बोला कि अगर कोई आता है और किसी के पास पैसे कम है तो वो उसमें एडजस्ट भी कर लेती है, क्योंकि वो बोलती है मुझे पता है कि कैसे अफेक्ट होती है पॉवर्टी, वो सब झेला है तो पता है मुझको, तो ये भी एक फीलिंग है उनकी। हेलो मैम। हाँ बोलो। हाँ, मुझे ना ये लेडी ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लगी, मतलब वो 10th के बाद ही उसने काम करना चालू कर दिया, और बहुत अर्ली एज में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, और बहुत अफेक्शनेट भी है, और मतलब जो टेलरिंग करके उसके पास जो भी आते हैं उनके लिए वो पैसा वगैरह, मतलब वो फीलिंग उसमें है, तो सिंपैथेटिक भी लगी, और वो खुद को मतलब ऐसा हुआ इसके लिए वो उसको लग रहा है कि वो बहुत अनफॉर्चुनेट फीलिंग लग रहा है उसको, तो कार्सिनोसिन का फील।
और किसी को बोलना है? हेलो संतोष सर, बोलना है आपको? ओके, तो मैं दूसरी केस बताती हूँ, तो दोनों का एनालिसिस हम साथ में करेंगे, ठीक है? तो एक ये भी लेडी है और उसकी एज कम है, लेकिन लगा था कि उसकी शादी भी नहीं हुई है, ऐसा मुझे लगा था। 28-29 समथिंग उसकी एज है, और उसको ना ब्लैक डिस्कलरेशन हुआ है फेस पे और थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। तो वो आई, क्लिनिक पे आई, एक बैठी अच्छे से, मुझे स्माइल दी और मुझे बताने लगी कि मुझे मैडम ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने पूछा, वो नई पेशेंट थी, मतलब पहचान वाली नहीं थी, तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए, कैसे आए? तो बोली कि मैंने यहाँ पे देखा और वो ऊपर जो मैडम रहती है उनके साथ मेरी पहचान है और उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पे जाओ, तो इसलिए मैं आई हूँ। तो उसकी स्किन पे जो फेस पे था वो उसने बताना स्टार्ट किया कि देखो मैडम, ये इधर हुआ है, ऐसा ऐसा ब्लैक हुआ है, ऐसा ब्लैक हुआ है, और इधर भी वो ऐसा थोड़ा सा निकाल के भी उसने दिखाया कि देखो इधर भी थोड़ा सा हुआ है। तो मैंने बोला कब से हुआ है? तो बोले कि हुआ तो है बहुत दिन से, लेकिन अभी बहुत ज्यादा उसको ईचिंग हो रही है। और एक डॉक्टर के पास मैं गई थी, तो उन्होंने कुछ तो क्रीम दिया मुझे और वो लगाया मैंने, और उसके बाद बहुत ज्यादा इचिंग हो गई और बहुत ज्यादा वो बढ़ गया। तो मैंने बोला ठीक है, फिर आप वापस नहीं गए उनके पास? तो बोली कि नहीं गई मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी, तो नहीं, मैं गई नहीं उनके पास वापस। बोला ठीक है, तो फिर क्या लगता है तुमको, इससे क्या होता है? तो बोले कि इचिंग तो बहुत ज्यादा होती है, और मैं जब उस पे पानी थोड़ा सा डालती हूँ तो उससे मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। और तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, तो इससे क्या दिक्कत क्या आती है आपको? तो बोली कि नहीं, वो अच्छा नहीं लगता ना, फेस पे सब ब्लैक ब्लैक हो गया है, सब लोग मतलब बोलते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने पूछा उसको कि क्या करते हो आप? तो बोले कि कुछ नहीं करती हूँ मैं। तो उसने पूरा अपने, इतना ही पूछने पर उसने पूरी अपनी लाइफ हिस्ट्री बताना मुझे स्टार्ट करी कि मैं अभी यहाँ पे मम्मी के यहाँ आई हूँ और मेरा हस्बैंड जो है वो क्रॉनिक अल्कोहलिक है। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं झगड़ा करके वापस मायके आ गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे, बेटी 12 साल की है और बेटा 7-8 साल का कुछ है। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, और अब ये 5वीं बार है कि वो मतलब वो अल्कोहल, ठीक है मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो अल्कोहल एडिक्शन करके थोड़ा सा वो उसने शांत रहना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए कि अपने मतलब संसार है अपना, बच्चे है, बीवी है, तो उनकी केयर करनी चाहिए थोड़ी सी। तो ये वो इंसान सोचता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, अभी मैं छोड़ के आ गई उसको। मेरी बेटी है सासू माँ के यहाँ पे, क्योंकि उसकी पढ़ाई है, तो उसको मैंने वहां पे छोड़ दिया और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेटे को लेके। तो अभी तो मुझे अभी तो मैं, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं है। तो मैंने पूछा उसको कि इतना है तो क्या है, फिर हस्बैंड के लिए गुस्सा है, हेट्रेड है, कुछ है? तो बोली कि नहीं, गुस्सा है, लेकिन अगर वो मान जाता है, वो ठीक हो जाता है, उसको अगर ये समझ आती है कि अपना ये करना चाहिए, तो मैं वापस जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उसने ये समझना चाहिए। तो सब लोग मुझे, आजू बाजू के मेरे सासू माँ, मेरे ससुर, वो सब बोलते हैं कि तुम्हारी बात सही है, तुम सही हो, इसको ही समझना चाहिए। तो इसके लिए सब मुझे समझते हैं, तो वो बात नहीं है। अगर वो समझ जाता है तो मैं वापस चले जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वो समझता नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो मैं नहीं जाऊंगी अभी, जब तक कि वो ये करता है। मैं अपने बच्चों को मतलब ये करके संभाल सकती हूँ, कुछ भी मैं छोटा मोटा काम करके मैं मेरे बच्चों को संभाल लूंगी। उसका अभी कुछ मैं टेंशन ही नहीं लेती, लेकिन दिमाग में उसके लिए कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो थॉट्स चलते रहते हैं। और दूसरी बात तो उसने ये बताया कि उसकी एक मतलब सौतेली माँ है, वो 1 साल की थी जब उसके फादर ने सेकेंड मैरिज करी, और उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए भी उसको कुछ नहीं है, वो ठीक है, सब फैमिली एक ही है। लेकिन उसका ये हुआ कि उसकी शादी जल्दी करा दी गई,
8th या 9th में थी ये बच्ची, और उसकी माँ के कोई तो रिलेटिव्स थे, तो वहां पे उन्होंने बोला कि हम लोग इसको आगे पढ़ाएंगे शादी के बाद, लेकिन हम शादी करवा लेते हैं। तो बोले कि ठीक है। तो लेकिन वो गई वहां पे शादी करके, तो उन लोगों ने इसको कुछ पढ़ाया वढ़ाया नहीं। वो फिर इसका हस्बैंड का ये चालू हो गया सब, अल्कोहल वगैरह, वो उसको समझ में आ गया। तो तब से उसका चालू ही है, और फिर बच्चे भी हो गए जल्दी, कम एज में। तो इसके लिए अभी बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन करना है। मतलब मैं बोलती हूँ कि संसार है अपना, मतलब हम अलग अलग नहीं रह सकते। हम अगर हस्बैंड वाइफ है तो साथ में रहना चाहिए, करना चाहिए। अभी मेरे देवर भी है, उनकी भी बीवी है, बच्चे हैं, तो वो लोग कैसा अच्छे से करते हैं, तो इनको भी समझना चाहिए मेरे हस्बैंड को। तो अगर वो समझ जाता है तो मैं जाऊंगी, नहीं तो फिर ठीक है, मैं ऐसे ही काम करके मेरे बच्चे को पढ़ाऊंगी। अब मेरा एक ही है कि अब मेरा तो सब हो गया, मुझे मेरे बच्चे को पढ़ा के अच्छा एक बनाना है, सिखाना है, कुछ तो करना है। बस ये सब उसकी लाइफ हिस्ट्री थी। तो इस पर से मैंने उसको एक मेडिसिन दी। तो अभी आप लोग बताइए, दोनों केस की एक ही मेडिसिन है। किसी को बोलना है कुछ? हार्मोनी डिजायर। और कविता, क्या रेमेडी आ रही है मन में? हेलो। पहले तो बुरा आ रही थी फर्स्ट केस की, बट ये केस की नहीं लग रही है इसकी गुड की। और किसी को कुछ आ रहा है? मैम वनीला। वनीला क्यों? एलिमेंट्स एंड केयर्स, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। मैम इसको डिसीव्ड फीलिंग भी है ना, इसके साथ धोखा हुआ। हाँ, लेकिन उसको वो ये नहीं है, किसी के लिए बिटरनेस नहीं है। दोनों भी केस में देखो स्ट्रगल है, बहुत सारी मतलब सेंस ऑफ ड्यूटी में है, ड्यूटी सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करना चाहती है। हाँ, बच्चे को पालना है, सही ढंग से रखना है। गेलं बघून कुठेतरी चौकशी करू, छान मला अजून एक। अच्छा, ड्यूटी लग रहा है आपको। कम्युनिकेटिव, ओके। ब्यूटीफुल वांट्स टू बी ललिता जोशी, इग्रेशिया, अफेक्शनेट, मोरल्स, डांसिंग, anxiety, children about responsibility and pleasing desire. Okay. Objective reasonable, कहाँ लगा आपको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल? फ्रिवोलस क्यों? कहाँ फ्रिवोलस है? उल्टा है, दोनों भी केस में उल्टा है। ऑब्स्टिनेट, okay. Sensitive, what others say about her. ऑब्स्टिनेट क्यों लगा आपको? मैम उसमें वो कह रही कि मतलब अगर मेरे पति मान जाते हैं तो ही मैं जाऊंगी, अगर वो फिर से अच्छे से करते हैं तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी ना, इसलिए मुझे ऑब्स्टिनेट लगा। अच्छा, तो जिद नहीं है ना ये, उसकी इच्छा है कि वो अच्छे से रहे। अच्छा, ये अच्छी बात है या क्या है? मैम ये क्या अच्छी बात, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब उसको लग रहा है कि अपना करना चाहिए ना, संसार करना चाहिए, एक साथ रह के अच्छे से करना चाहिए, तो ये अच्छी बात है या क्या है? हाँ ये अच्छी बात है, पॉजिटिव वे में ही करेंगे। पॉजिटिव, हाँ। एक्स्ट्रावेगेंस क्यों लगा आपको? किसको लगा एक्स्ट्रावेगेंस?
जितने दिन से मैम वो चल रहा था तभी उसको कुछ नहीं लगा इतना, लेकिन अभी वो ज्यादा हो गए तो उसको लगा कि अभी कुछ करना चाहिए इसके लिए, तो वो उसके लिए आई है। नहीं, लग तो पहले से ही रहा था, लेकिन ईचिंग बढ़ गई ना अभी। किसी डॉक्टर के पास गई वो, और उसके बाद बहुत ज्यादा हो गई ईचिंग। वो डर भी है कि बढ़ना चाहिए ज्यादा। ओके, और किसी को बोलना है कुछ या फिर डिस्क्लोज सेंसिटिव करें? ओपिनियन ऑफ अदर्स में भी आएगी। दूसरों को लग रहा है, हाँ, दूसरों को खराब लग रहा है और उस वजह से वो रिजेक्शन में जाएगी, तो सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स। ओपिनियन, ओके। लेकिन ड्यूटी ओपिनियन सेंस कहाँ ऑफ ले रही हो किसी का? दूसरों को खराब लग रहा है मेरी स्किन का प्रॉब्लम, जिससे वो नहीं मेरे से उसको दूर जा खराब रहे हैं। लग रहा है, दूसरों को नहीं लग रहा है। अच्छा, ओके। वो ब्लैक दिख रहा है ना, तो उसको खराब लग रहा है कि लोग तो देखते हैं। एम्बेरसमेंट में जाएगी। एम्बेरसमेंट तो कॉमन हो जाएगा ना। हाँ, तो ड्यूटी सेंस ऑफ ड्यूटी लग देखो, रही है। किसी का चेहरा अगर बदल जाए, रूप ही बदल गया है, ब्लैक हो गया है, तो उसके लिए कुछ तो डीप फीलिंग होनी चाहिए ना। सेंसिटिविटी तो है, लेकिन उसके फीलिंग तो उसकी नहीं बता रही है वो। मैथमेटिक एबिलिटी 4 कैसे? मैम एक्चुअली उसने कैलकुलेट कर लिया ना कि पति तो सुधरने वाला है नहीं, तो मैं फिर अपने मैके आ जाती हूँ, और वो ये कह रही है कि अगर से वो सुधर जाते हैं तो मैं चली जाऊंगी। तो इसमें मैथमेटिक्स कहाँ आ गए? मैम उसने कैलकुलेट किया ना कि पति अब तक तो सुधरा नहीं है, तो ये आगे भी ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, ओके। और किसी को बोलना है कुछ? मैडम, बोथ वुमेन आर लुकिंग रिस्पॉन्सिबल। क्या? सॉरी, बोलिए। और उनको दोनों को कुछ ग्रजेस नहीं है। आई एम थिंकिंग ऑफ कार्सिनोसिन। ओके, ओके। और किसी को बोलना है? सो डिस्क्लोज करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अनीता एंड रंजीत सर। दिस इज कार्सिनोसिन, दोनों भी केस कार्सिनोसिन की है। तो पहले केस में जो था बहुत अच्छा पकड़ा था, लेकिन मैंने कुछ रूब्रिक अलग लिए थे उसके लिए। तो वो जो दोस्तों के साथ घुल मिलना जो है, उसको अच्छा लगता है सबको देना करना, हाँ, तो वो एक तरह से सबके साथ में रहना चाहती है, मतलब कि वो सोशल है। तो उसके लिए मैंने रूब्रिक लिया था सोशिएबिलिटी। ओके, अफेक्शनेट तो है ही, सिंपैथेटिक है। और दूसरा वो जो उसकी जो फीलिंग है कि मैं इतना करके भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं इतना काइंड होके भी, इतना अच्छा करके भी ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया है। तो अनीता मैडम ने बहुत अच्छा पकड़ा था वो अनफॉर्चुनेट फीलिंग। और ये जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं कि जैसे डिस्पाइज्ड वाला जो था कि सबने पकड़ा डिस्पाइज है, कि उसको वो जैसे अछूत जैसे फीलिंग हो रहा है ना, रिजेक्टेड फीलिंग हो रहा है, तो दैट इज ह्यूमिलिएटेड फीलिंग। तो ये 4-5 रूब्रिक लेके उनको कार्सिनोसिन दिया था, कार्सिनोसिन 6 दिया था, और उनको बोला था कि आप वापस मुझे एक बारी दिखा देना। तो उसके बाद वो 1 महीने के बाद शायद आई, तो वो शी वॉज हैप्पी कि वो रिड्यूस हो रहा था सब। और जैसे कि हेरिंग्स लॉ ने बोला है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो उसी तरीके से हो रहा था। तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि रेमेडी इतना अच्छा काम कर रही है। तो दिस वाज द फर्स्ट केस। और सेकेंड केस में भी उसका जो है, एक तो पहला रूब्रिक तो मैंने कम्युनिकेटिव लिया था, क्योंकि वो दिखा ही रही थी सब
ऐसा इधर है इधर है इधर है, ये निकाल के भी दिखाया कि देखो मैडम ऐसा हुआ है। तो मतलब वो पूरा कम्युनिकेटिव था और थ्रू एंड थ्रू था, क्योंकि उसको मैंने खाली एक ही क्वेश्चन पूछा और उसके बाद उसने पूरी हिस्ट्री बता दी। इसमें भी किसी के लिए कुछ बिटरनेस नहीं थी उसके मन में। और जो हस्बैंड के लिए उसकी फीलिंग है, तो मैंने पूछा था उसको कि गुस्सा है कि क्या है, हेट्रेड है क्या है, तो बोलती कि नहीं, लेकिन उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था ना, ये गलत हुआ ना। तो गलत का रूब्रिक है इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट। तो उसको ये गलत न्याय हुआ उसके साथ। और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो ले ही रही है और किसी के लिए उसके मन में बिल्कुल भी कोई ग्रजेस नहीं है, मतलब इतना होके भी। और दूसरा एक रूब्रिक है जो हम हमेशा ऐसे केसेस में लेते हैं कि जब जिस लड़कियों की शादी जो जल्दी कराती है अपनी सोसाइटी में, तो उनके लिए एक रूब्रिक सर ने सिखाया है हमको कि एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड सेक्सुअली। तो सेक्सुअली मतलब कि जो वीकर सेक्स माना जाता है, फीमेल्स को एक वीकर सेक्स माना जाता है, और उसको अब्यूज इज गलत, मतलब गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो उसकी वजह से जो उनको एलिमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर भी उसको वो है कि ये गलत हुआ मेरे साथ। तो दोनों भी केस में ये लग सकता है, लेकिन पहले केस में उनको ये नहीं लगा है। सेकंड केस में उसको था कि हाँ मेरी शादी जल्दी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए, फिर इन्होंने ऐसा किया कि मुझे पढ़ने नहीं दिया वगैरह, ये सब बातें उसके मन में है। तो इसके लिए ये रूब्रिक सेकंड केस में मैंने लिया था। सो दोनों केस को कार्सिनोसी ने दिया था और वंडरफुल रिजल्ट्स आए हैं। सो और ये थ्रू एंड थ्रू केसेस, जैसे अपने कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑर्गेनॉन में बताए गए हैं या फिर हेरिंग्स लॉ बताए गए हैं, तो उस तरीके से ये क्योर हुए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये ऑर्गेनॉन अप्लाई हो रहा है। तो सर हमेशा बोलते हैं कि ऑर्गेनॉन पढ़ो, पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अपना बेस है, अपना फाउंडेशन है। अगर अपने को अपना फाउंडेशन ही नहीं पता हो तो बिल्डिंग नहीं रह सकती उसके ऊपर। तो इसके लिए पढ़ते रहना चाहिए ऑर्गेनॉन, मुझे भी ऐसा लगता है। और this is all from my side. Thank you everyone for joining, and thank you Liaquat sir for giving us this vision to solve such type of cases. किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछिए। एक क्वेश्चन है मैम, इसमें आप स्किन में पोटेंसी और रिपीटेशन कैसे करते हैं? स्किन में ज्यादातर एक तो LM या फिर 6 देते हैं, 6 देते फॉर 6 days, और उसके बाद बंद करके SL पे रखते हैं। तो अगर नहीं होता है, प्रोग्रेस नहीं होता है या फिर कहीं रुक जाता है, तो उसके बाद LM स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ज्यादातर LM या फिर 6 पोटेंसी। ओके, LM है तो कितनी, मतलब हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, और कैसे है, 1 डोज और क्या है? नहीं, LM रिपीट कर सकते हैं ना, अगर ईचिंग है, कुछ है कंटिन्यूअस, अगर कुछ कंप्लेंट्स आ रही है तो उसको हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब BID भी कर सकते हैं, QID भी कर सकते हैं, ओके, वंस अ डे भी दे सकते हैं। अच्छा। 6 कैसा देते हैं, प्लीज जरा रिपीट करें। 6 BD दिया था 6 days के लिए। ओके ओके, 3 days इज एक्चुअली सफिशिएंट, बट ज्यादा था तो मैंने 6 days के लिए रखा था थोड़ा। मैम एक बार रूब्रिक्स बता दीजिए ना दोनों केसेस का। दोनों केसेस का पहले केस में तो एक अफेक्शनेट तो सबने लिया था, अफेक्शनेट, सिंपैथेटिक, फिर सोशियबिलिटी, अनफॉर्चुनेट फील्स और ह्यूमिलेटेड फीलिंग। ये पहले केस के रूब्रिक्स हैं। और सेकंड केस के हैं कम्युनिकेटिव, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, और एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग सेक्सुअली। ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ क्वेरी है? हेलो,
हेलो, कुछ क्वेरी है या सब कन्विंस हो गए? मैम कार्सिनोसिन का लेकिन वो वाला फील नहीं आया ना कि वो सहती जाती है जो उसको, मतलब ठीक है हाँ, हस्बैंड पी स्ट्रगल ही रहा तो है। चल रहा है ना, क्या चल रहा है उसके लाइफ में? हाँ स्ट्रगल तो चल रहा है। हाँ, और स्ट्रगल चलने के बावजूद भी, सबसे ये मिलने के बावजूद भी किसी के लिए बिटरनेस नहीं है। वो खुद उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे किसी के लिए बुरा नहीं लगता है। कार्सिनोसिन का यही तो ट्रेडमार्क होता है ना, वो करते जाते हैं और किसी के लिए कुछ रखते नहीं है मन में, शहीद होते जाते हैं ना। हाँ, मार्टिस वाली मार्टियर फीलिंग में हो। जाते हैं। मार्टियर। यस मैम, थैंक यू। डोमिनेशन रहता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है कि हर फैसेट आपको मिले। कार्सिनोसिन का थोड़ा सा भी मिल जाता है तो वो, और क्योर होने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। लेकिन हर केस में पूरी रेमेडी का जर्नी मिलेगा ये पॉसिबल नहीं है। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन मुझे तो थ्रू एंड थ्रू कार्सिनोसिन लगी, जो पहली लेडी थी उसमें कोई डाउट ही नहीं लगा था। मॅम, पहिल्या केस मध्ये म्हणजे विजिबल रिझल्ट कधीपासून सुरू झाले येणं, दिसणं? 1 वीक. अच्छा. एका वीक मध्ये ते रेड्यूस व्हायला सुरुवात झाली होती. इचिंग आणि जे डार्कनेस होतं ना ते कमी झालं, आणि 1 महिन्यानंतर जेव्हा ते आले तेव्हा ते पूर्ण म्हणजे स्किन दिसायला लागली होती. ओके मॅम. सो वाइंड अप करें? आई थिंक किसी को कुछ डाउट्स नहीं है. मैम, जो वो एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज्ड वाला था उसको थोड़ा एलिबरेट करिए उस रूब्रिक को. हाँ, वही पता है ना कि जैसे हम मेटाफोरिकली भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी ले सकते हैं कि अब्यूज का मतलब क्या होता है? गलत यानी कि तरीके वही से गलत इस्तेमाल किया हुआ. होना. हाँ. और सेक्सुअली का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं, अगर कम उम्र में शादी हुई है तो इमेजिन करो ना, एक 15 इयर्स की लड़की है और 30 इयर्स का मेल है, तो उनकी शादी कराई है, तो वो डोमिनेशन भी होता है, अब्यूज ही होता है ना वो. तो वीकर सेक्स होता है, फीमेल सेक्स को वीकर सेक्स मानते हैं ना, तो उसके ऊपर अगर आप डोमिनेशन करते हैं तो उसको अब्यूज होता है. गलत तरीके से होता है ना, इसीलिए. अच्छा, किसी को वो डिस्पाइज्ड वाला फीलिंग नहीं आया है क्या? Nobody thought to take despised as a rubric. तो क्यों फिर रूल आउट किया? What made you not take that rubric? तो मैंने ह्यूमिलेटेड फीलिंग लिया था उसके लिए. I am not asking you, I am asking the crowd. This is okay? I think this is better. Yes. Okay. Humiliation. Despise. Very good. Despise मतलब क्या? Despise मतलब क्या? What is despise? What is humiliation? Mansi? What is despise and what is humiliation? Mansi madam. अपमानित. ह्यूमिलेशन म्हणजे अपमानित हो. डिस्पाइस यानी नीचा दिखाना. तिरस्कार. हाँ, तिरस्कार. Exactly. And humiliation मतलब क्या? अपमान होना. Not only अपमान, दिल को लगने वाला. Humiliation मतलब इंसल्टिंग, जैसे more than insult. Insult में you have a sort of insult is offended. Humiliation is little more. Humiliation you can say is between insult and what? निरादर. Humiliation is between, yes. इसके अंदर भी आपका रिस्पेक्ट नहीं रखा जाता है. Humiliation में भी रिस्पेक्ट नहीं होता है. पता है, और एक रूब्रिक है ना इसमें, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस ह्यूमिलिएशन, ऐसा है ना? क्या है वो? सेक्सुअल अब्यूज विथ ह्यूमिलिएशन, ऐसा कुछ है ना? क्या है वो? What is that rubric in carcinosin? That is abuse sexually.
Humiliated feeling sexual abuse after. हाँ देखो कितना अच्छा रूब्रिक है. Carcinosin single Only remedy is carcinosin. Now what will you take sexual abuse here? Is the weaker one is been abuse का मतलब क्या है? मानसी ने बहुत अच्छे समझा. Wherever the word is beginning with AB, AB stands for abnormal. Okay. abnormal. Abnormal. Simple. है ना? Abnormal use. Okay. It's that simple. English is very simple language. Okay. We all are actually taking English classes. I many times we feel that as if we are taking English classes, right? As if we are learning the language. है ना? One suggestion to all listeners is stop using English words in your common language. Use your mother tongue. Whatever you are, whether you are Oriya, whether Punjabi, whether Marwadi, Muslim, whatever is your local dialect, use that as your mother tongue. And thousands of your problems will be solved with that. Very simple thing. I always see to it that I speak in Hindi, I speak in Marathi, whatever is the patient, and whichever language I am comfortable with. So all this, because then in your own mother tongue, you tend to use the correct word. Because for me, every word is a definition, right? Like A is a definition. A has a definition. Hurry has a definition, right? Hello? Humiliation has a definition. So for me, language is nothing but science. Okay, so in science, we have definition for every concept. The same way, we have definition for every word. Even there is a definition of every gali. Even for that, it has a definition. It has an origin. Okay, if you see, most of the bad words are targeted towards female. If you just take MCBC, everything, they are to make you feel female gender. Okay, and they are to make you, like we call an effeminate number 6. Okay, so that also goes towards the female gender, and even other like MCBC, everything, they are all targeted to the female gender. Now, what does that mean? That means you actually do not have the courage to abuse a stronger sex, a stronger force. So you will always abuse a weaker one. Like अगरचे आपको एक पुलिस वाला अगर आपको ओवरटेक करके जा रहा है, पुलिस वाला गलत तरीके से गाड़ी चला के आपको कट मार के जा रहा है, तो आप उसको रोकोगे नहीं. वही अगर रिक्शा वाला जा रहा है, उसमें भी रिक्शा वाला अगर गुंडा है, तो आप उसको रोक के गाली नहीं दोगे या उसको पकड़ोगे नहीं. वही अगर कोई कमजोर जा रहा है या कोई जेंटलमैन जा रहा है, तो सीट है ना, उसको गाली दोगे. सो यहाँ से बिगिनिंग है अब्यूज की. ओके, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. सर एक क्वेश्चन. थैंक यू सर. हाँ, थैंक यू सर. हॅलो. हाँ, बोल. सर, एक्झिमा सोरायसिसच्या पेशंट मध्ये बऱ्याचदा असं पेशंट्स ना एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन हवं असतं, की काही क्रीम हवं असतं किंवा व्हॉट एव्हर, तर त्याला काय रुब्रिक घेणार? नाही बेटा, त्याला आपण रुब्रिक नाही घेऊ शकतो. आपण घेऊ पण नाही. माय सजेशन इज नॉट टू टेक रुब्रिक, because it is commonly it's a common practice na to give external application. So I suggest to such patients कि भाई आप उसको ये लगाओ, कोकोनट ऑयल लगाओ, मैक्स टू मैक्स आया. दैट टू आई से कि वो एडिबल वाला कोकोनट ऑयल, नॉट द वन वी गेट दिस ये जो होता है ना, जो भी है बाकी पैराशूट वगैरह. हाँ, ये मत. प्लेन मैं बताता हूँ कि साउथ इंडियन लोग जो खाते हैं एडिबल वाला कोकोनट ऑयल लाओ वो दुकान से, गो टू दैट शॉप एंड बाय एंड देन पुट. Then I explain कि मैं बताया ना कि there is nothing like skin disease. Disease comes out through skin. So it is an expression that you're suppressing. अगर गांव का आदमी तुम्हें बोलता है कि त्वचा म्हणजे कुंपण आहे आपली, ठीक आहे ना, तर कुंपणावर जर काही घाण आली तर आपण ते दाबून आतमध्ये शेतात टाकत नाही, आपण त्याला बाहेर काढतो. तो लेट इट कम आउट. आप दबाओगे, यहाँ से वो अंदर जाएगा, इट विल गो अप, इट विल गो डीपर.
थोड़ा सा 2 मिनट लगता है बेटा to explain them how the things are traveled. You have to just go and tell them na कि we started with one cell. So your hair and your nail is not different. It is just one expression. It is just expression of your one cell. So your eye and hair is no different. They are but expression of one cell. Okay. Okay. Explain them. It's very simple. And people understand. People understand. I tell you, people understand. अगर I just tell ना कि बाबा लोग बोलते हैं मन का आपके शरीर पे असर क्या है, तो मैं बोलता भैया आपको गुस्से में कभी सुना है आपने? गुस्से में हार्ट अटैक आने वाला सुना है? किसी को किसी का दुख हुआ और हार्ट अटैक आया सुना है आपने? किसी का कोई मर गया और उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है, ग्रीफ में सुना है? कुछ सुना है? तो फिर अपन बोलते हैं कि भैया मन का शरीर पर परिणाम होता ही है। सिंपल, बहुत सिंपल होता है। मेरे को तो अच्छा लगता है एजुकेट करना पेशेंट को, बिकॉज दैट पेशेंट इज गोइंग टू स्पीक टू hundreds of people in his so he's actually propagating homeopathy. And goodness pays, you do good, it will come back to you, inshallah. Right? Yes sir. I think this solves all the queries. Thank you, sir. Right? All right. Deepa, Thank you sir. Yeah, thank you. Okay sir, Deepa, thank you sir. Deepa? As we saw the way of understanding the case by Dr. Mansi in such a simple yet effective way by the use of correct rubric, then we gave the correct synonym. And also she had good knowledge of organisms. So keep joining and keep learning. Thank you. दीपा मॅडम जेव्हा इंग्रजीमध्ये बोलते ना तर असं वाटतं की काहीतरी कुठून तरी दुसराच आवाज येतो. ओके, प्रणीता, यू वांट टू स्पीक समथिंग बेटा? हेलो, जिसको भी सर से पर्सनली सीखना है तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। जो पोस्टर है लेक्चर का उसमें मेरा नंबर है, डॉक्टर प्रणीता, ठीक है? तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी कोर्सेज के बारे में, जहाँ पे आप सर से 1-to-1 सीख सकते हो। थैंक यू मानसी मैडम फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू। चलो जाते जाते आपको एक रूब्रिक लेकर जाता हूँ। नेक्स्ट टाइम ये होमवर्क है, नेक्स्ट टाइम मुझे इसका जवाब चाहिए। होपफुल विथ लंग कंप्लेंट्स, ओनली रेमेडीज ऑरमेट। होपफुल इन लॉन्ग लास्टिंग डिसीजेस, अगेन ऑरमेट। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये पढ़ के रखिएगा। ओके, सी यू, गॉड ब्लेस, सी यू, थैंक यू टुडे आवर 26th lecture. Thank you, sir. 74 more to go. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Bye. And do watch our YouTube channel, and all your questions